Namaskar. In our process of understanding the great thoughts of Swami Vivekananda, we have been talking about Karma Yoga. And in that place, we'll also today try to understand his ideas about sacrifice, self abnegation, how forgetting yourself or sacrificing yourself for the cause of others can actually lead to the great satisfaction. It is also the really the essence of, you can say, Karma Yoga. So certain slides, as usual, we'll try to understand through, and along with that, we'll also see what Swamiji was going to tell us. So Swamiji here tells that non-attachment is complete self-abnegation. One has to be completely detached with the things. So long as we consider ourselves as attached to any particular act, to people, to the place, to the surrounding, to the team, it's very difficult for us not to expect anything. We get attached to that. We also get little bit of feel belongingness to that, and then separation is very painful. So Swamiji says here that just as every action that emanates from us comes back to us as reaction, even so our actions may act on other people and theirs on us. Perhaps all of you have observed it as a fact that when persons do evil actions, they become more and more evil. When they begin to do good, they become stronger and stronger and learn to do good at all times. So, this intensification of influence of action cannot be explained on any other ground than that we can act and react upon each other. So, how do you explain this? Is beginning this talk by saying that when you do good actions, you tend to do more and more good actions. When you do evil actions, you tend to do more and more evil actions. And so, it is important that we keep on doing that, and also we get influenced by the our reactions of the other people uh, on us and our reaction on them. That means that's the very importance of this whole action of action and reaction. So our actions are going to affect the other people, and their actions are going to affect us. So that's why this intensification happens when good can be added to good, and also it may happen if evil gets added to evil. सत्संगति का जो महत्व है वो इस दृष्टि से है कि जो भी हम करते हैं उसका परिणाम दूसरों पर होता है, दूसरे जो करते हैं उसका परिणाम हम पर होता है। और इसलिए हम हमेशा देखते हैं कि जब कोई सच्चा सच्चा अच्छा काम कर रहा है तो उसको भी एक प्रकार से कहीं से मदद मिलती जाती है और अच्छा काम और अच्छा अच्छा होने की प्रेरणा तथा शक्ति जागृत होती जाती है। वैसे ही जब बुरा काम करने वालों को और भी कोई बुरी संगतें, बुरी लोगों के और भी प्रेरणाएं और शक्तियां मिलती रहती हैं। That's why this intensification happens. If you take illustration from physical science, when I'm doing certain action, my mind may be said to be in a certain state of vibration. All the minds which are in the similar circumstances will have the tendency to be affected by my mind. And if there are different musical instruments which are tuned alike in one room, all of you may have noticed that when one is struck, the others have the tendency to vibrate so as to give the same note. तो उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि जब फिजिकल वर्ल्ड में सी भौतिक जगत से उदाहरण है कि कोई चीज अगर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रही है, कंपन कर रही है, तो मान लो हमारा मन एक पर्टिकुलर कंपन से, पर्टिकुलर गति से कंपन कर रहा है, तो वो उसी कंपन गति वाले बाकी सारे मन के साथ उनका कहीं ना कहीं अट्रैक्शन या उनका इफेक्ट एक दूसरे पे हो जाएगा। मान लो कोई रूम में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रखी है, तो जब एक तार म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के सतार के सब हम लोग कंपन करते, उसी साथ दूसरों के भी कंपन अगर हो उसी प्रकार से हो, तो एक प्रकार का एक सिम्फनी क्रिएट होती है, उसमें से संगीत तैयार होता है। वरना सब कुछ ऐसा लगता है कि क्या शोर मच रहा है, तो शोर से संगीत में जाने की प्रक्रिया है वो सारी लोगों की एक ही गति से कंपन होने की एक प्रकार से हम कह सकते हैं वो प्रक्रिया है। So all minds that have the same tension, so to say, will be equally affected by the same thought. Of course, this influence of thought on mind will vary according to distance and other causes, but the mind is always open to affection. Suppose I am doing an evil act, my mind is in the same state of vibration, and all minds in the universe which are in the similar state have the possibility of getting affected by the vibration of my mind. So when I'm doing a good action, my mind is in another state of vibration,
and all minds similarly strung have the possibility of being affected by my mind. And this power of mind upon mind is more or less according to the as the force of the tension it is greater or less. तो वही एग्जांपल आगे लेके वो जाते हैं, कहते हैं कि जैसे हमने अभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का वाद्य वृंद जो रहता है संगीत का उसके उदाहरण लिखे, तो उसी प्रकार मन के बारे में वैसा ही है। और अगर मेरा मन एक दुष्ट कृति करता है तो एक प्रकार की विशिष्ट कंपन गति में वो होगा, और सारे मन जो विश्व भर है, विश्व के किसी भी कोने में जो वैसे ही कंपन गति में है, तो ऐसा हो सकता है कि मेरे कंपन से उनके ऊपर भी कोई असर पड़ता है। उसी प्रकार अगर मेरा मन एक अच्छी कृति करता है तो उससे भी कुछ कंपन होते हैं जो अलग प्रकार के कंपन होते हैं पहले से, और फिर उसी कंपन में रहने वाले दुनिया भर के जो सारे मन हैं, वो हो सकता है कि मेरे मन के कंपन की वजह से उस कृति में जो मेरा कंपन मन का हुआ है उसी कंपन को वो भी पकड़ ले और उनके ऊपर भी उसका असर पड़े, उनकी भी कंपन हो। और ये कैसे होता है, क्योंकि जैसे वाद्य वृंद का वापस उदाहरण में, वाद्य जो रहता है कंपन तब होता है जब उसके तार खींच लिए जाते हैं, एक प्रकार से उनमें तनाव आता है, तभी तो आप जब रिलीज करते तो उससे कंपन होता है। तो कोई भी जो पेंडुलम या कोई भी कंपन होने वाली चीज है, तार है, तो उसकी हमेशा एक स्थिति से दूसरी स्थिति, फिर पहली स्थिति दूसरी स्थिति, ये जो उसका वारंवारिता है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, वो इसी पर निर्भर करती है कि इनिशियली उसमें कोई आपने टेंशन दिया था, आपने एक प्रकार से उसको एक जगह पर छोड़ा तो ही वो वापस आके दूसरी जगह आती है, दूसरे छोर पर आती है। यही उसका कृतियों में या कर्मयोग में भी यही एक प्रकार का सिद्धांत है। Following this civilly further, it is quite possible that just as light waves may travel for billions of years before they reach any object, so thought waves may also travel hundreds of years before they meet an object with which they can have a vibration in unison. It is quite possible, therefore, that this atmosphere of ours is full of such thought pulsations, both good and evil. Every thought projected from every brain goes on pulsating, as it were, until it meets a fit object that will receive it. Any mind which is open to receive some of these impulses will take them immediately. तो क्या बताते हैं कि जैसा हमने ध्वनि के कंपन का उदाहरण लिखा, उसी प्रकार से मन के कंपन होते हैं, ऐसा हमने उसमें एक प्रकार की सख्य स्थापित किया, सिमिलैरिटी देखी। उसी प्रकार प्रकाश के भी अपने कंपन होते हैं, और ये भी हो सकता है कि कई हजारों वर्ष पहले बहुत ज्यादा हम कहेंगे कि अकल्पनीय हमसे अंतर है, ऐसे भी किसी तारे से, किसी ऐसे कहते हैं ना भौतिक शास्त्र में कि आज अगर आपको एक तारा दिख रहा है तो हो सकता है कई प्रकाश वर्ष पूर्व उसने वो प्रकाश छोड़ा रहेगा, आप तक आने के लिए इतना समय लगा। तो आज जब आप उसको देख रहे हैं तो शायद वो प्रकाश कई हजार वर्ष से वहां से उसको उसने प्रज्वलित किया था, या उसको वहां से वो प्रकाश किरण उसने छोड़े थे। तो उसी प्रकार आज जब हमें कुछ प्रकाश हमारी तरफ आता है तो हो सकता है कि कई हजारों वर्ष पहले उसने अपनी गति शुरुआत की, अपनी प्रस्थान शुरुआत किया था, और आज आके वो एक ऐसे वस्तु पे आ गया जिसके कंपन और उस प्रकाश के कंपन एक जैसे ही है, वो दोनों एक दूसरे को मिल सकते हैं, एक दूसरे को एक जैसे ही समझ सकते हैं। ये अभी हो रहा है। इसलिए ये भी हो सकता है कि जैसे ही हमारे वातावरण में हमारे आसपास जो भी है, इस वो ऐसे अनेक प्रकार के जो विचार है, विचार के कंपन यहाँ वहाँ अच्छे बुरे बहुत सारे हो सकते हैं। हर एक जो कंपन है, हर एक जो विचार है, वो किसी न किसी ने मस्तिष्क से, किसी न किसी अच्छे दिमाग से या मन से कभी न कभी कंपित हुआ रहेगा, और वो तब तक आसमंत में वो प्रस्थान करता रहता है, वो चलता रहता है, जब तक कि कोई ऐसा दूसरा मन या दूसरा मस्तिष्क उसे पकड़ ना पाए जो कि सिमिलर कंपन में है। तो वही कंपन में जो दूसरी वस्तु मिलती है तो उसको वो उसके साथ उसका सख्य हो जाता है। ये हमने अभी देखा। तो वही वो जो प्रकाश के बारे में कहा, वही ध्वनि के बारे में कहा, वही उन्होंने मन के बारे में भी कहा है। तो ये हो सकता है। इसलिए अब एक्सप्लेन करना अभी आसान होता है कि when a man is doing evil actions, he has brought his mind to a certain state of tension, and all the waves which correspond to that state of tension and which may be said to be already in the atmosphere will struggle to enter into his mind. That is why
एंड एविल डूअर जनरली डज ऑन डूइंग मोर एंड मोर एविल। तो जब वो कोई दुष्ट चीज करता है, कुछ बुरी चीज करता है उसको, तो उसका मन एक प्रकार की तनाव में आता है, एक प्रकार का कंपन उसमें होता है, और सारे बाकी के कंपन या बाकी सारी लहरें जो उसी प्रकार के तान तनाव से निर्मित है, तो हो सकता है कि वो यहाँ वहाँ पूरे आसमंत में है, और उस आसमंत में जब वो रहती है तो कहीं ना कहीं से वो भी प्रयत्न कर रही है कि ऐसा कोई मन मिले, उसमें ऐसे कंपन मिले, और उसको जब मिल जाता है तो बिल्कुल वो उसको पकड़ लेती है। इसलिए हमें हमेशा दिखता है कि जो दुष्ट चीजें करने वाला व्यक्ति है उसको और दुष्टता करने की उसमें एक प्रकार से प्रेरणा मिलती है, उसको शक्ति मिलती रहती है। इट गेट्स एडेड टू इटसेल्फ, इट इज सेल्फ यू कैन से propelling or augmenting. That is because he gets a synergy from all the other evil forces which are coming there. तो इसकी जो एक्शंस, हिज एक्शंस विल बिकम इंटेंसिफाइड। ये साइंस है उसका, बहुत गहरा साइंस कर्म का हम यहाँ बता रहे। दुष्ट कैसे होते हैं और दुष्ट और सुष्ट कैसे और सुष्ट होने की उनको प्रेरणा मिलती है। तो ये बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से उसको समझा रहे स्वामी जी, और इसलिए उसका महत्व है। यहाँ पे हमें किसी भी तरह से उसमें बहुत ही गूढ़ और सिर्फ धार्मिक चीजें दिखती नहीं है, बिल्कुल वैज्ञानिक चीजें हमेशा स्वामी जी के वांग्मय में दिखती है। तो इसलिए वो इंटेंसिफिकेशन वहां से आता है, और इसलिए जो डूअर ऑफ गुड, he will open himself to all the good waves that are in the atmosphere. His good actions also will become intensified. We run therefore a twofold danger in doing evil. First, we open ourselves to all the evil forces which are surrounding us. Second, we create evil which affects other people, and that can remain there for thousands of years, hundreds of years. So in doing evil, we injure ourselves and we injure others also. In doing good, we do good to ourselves and we do good to others as well. And like all other forces in man, these forces of good and evil also gather strength from outside. इतना उसमें वैज्ञानिक बहुत ही सुंदर तरीके से स्वामी विवेकानंद ही दे सकते, मुझे नहीं लगता और किसी ने इतनी सुंदरता से उसको आधुनिक जगत के लिए प्रस्तुत किया होगा। तो ये इसमें कहते हैं बुरा करने में दो धोखे हैं। एक तो आप अपने खुद का बुरा कर रहे हैं, और दूसरे लोग जो उससे प्रभावित हो सकते हैं वो भी आपकी वजह से बुरा कर सकते हैं। और इसीलिए जब आप कोई भी बुरा कर्म करते हैं, जब आप कोई भी दुष्ट कर्म करते हैं, बुरा काम करते हैं, तो आप दूसरों को तो उसका परिणाम दिलाते ही है, और ऐसा परिणाम सैकड़ों वर्ष बाद में रह सकता है। तो बुरा करने से सिर्फ हमारी ही उसमें हालत ही खराब होती है, आप दूसरों की भी हालत खराब कर रहे हैं, और आज के लिए नहीं, आज के 100 साल बाद, 200 साल बाद भी आपने किया हुआ एक बुरा कर्म देखिए कितना दूर तक उसका परिणाम निकल सकता है। उसी प्रकार से आप अगर अच्छा करते हैं तो आप अपने आप के लिए अच्छा कर रहे हैं, उसी समय स्वाभाविकता से वो अनेकों के लिए भी अच्छा हो रहा है। तो इसीलिए ये दोनों जो सुष्ट और दुष्ट जो शक्तियां हैं, जो फोर्सेस है ऑफ गुड एंड एविल, ये उन्हें शक्ति हमेशा बाहर से मिलती रहती है, दूसरे शक्तियों से उनको अपनी शक्ति उसका विस्तार हो जाता है। और कर्मयोग क्या कहता है? कर्मयोगा says that the action one has done cannot be destroyed until it has borne its fruit. No power in nature can stop it from yielding its results. If I do an evil action, I must suffer for it. There is no power in this universe to stop or stay it. Similarly, if I do a good action, there is no power in the universe which can stop its bearing good fruits or good results. The cause must have its effect. Nothing can prevent or restrain this. Now comes a very fine and serious question about Karma Yoga, namely that these actions of ours, both good and evil, are intimately connected with each other. स्वामी जी कहते हैं कि अभी कर्मयोग का अगर आप सिद्धांत देखेंगे तो हमें पता है कि कोई भी कर्म ना तो उसका नाश पूर्ण तरह से होता है, वो कभी भी ना जा नहीं सकता जब तक उसका फल न मिले। फल तो मिलना ही है, और कोई भी दुनिया की ताकत एक बार कर्म करने के बाद उसका जो परिणाम है, उसका जो फल है, उसको मिलने से किसी को रोक नहीं सकती। अगर आपने बुरा किया है तो आपको उसके लिए तड़पना पड़ेगा, आपका कहानी आपको हो ही जाएगी, आप कुछ नहीं कर सकते। दुनिया की कोई भी ताकत आपको तब उससे रोक नहीं सकती। वैसे ही जब आपने अच्छा किया है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती, आपको अच्छा होना ही है, आपके लिए अच्छा फल मिलना ही है। तो हर जो हमें फल मिलता है उसका कोई ना कोई कारण है, एक परिणाम मिलता है तो हर परिणाम का एक कारण जरूर होता है या अनेक कारण होते हैं, और कोई भी उसे
रोक नहीं सकता, उसके किसी प्रकार से उसको बाध्य नहीं कर सकता। जो होना है वो होना ही है। इस प्रकार से बिल्कुल वैज्ञानिक नियमों से जैसा भौतिक जगत बंधा हुआ है, वैसे ही आध्यात्मिक जगत, मानसिक जगत भी पूरी तरह से बंधा हुआ है, प्राणी जगत भी बंधा हुआ है। और इसमें एक बहुत ही सीरियस क्वेश्चन, एक बहुत ही गंभीर प्रश्न, एक सूक्ष्म प्रश्न आता है। वो ये है कि दैट दिस एक्शंस ऑफ आवर्स बोथ गुड एंड इविल आर इंटीमेटली कनेक्टेड विथ ईच अदर। We cannot put a line of demarcation and say this action is entirely good and this action is entirely evil. There is no action which does not bear good and evil fruits at the same time. To take the nearest example, I am talking to you, and some of you perhaps think I am doing good. At the same time, I am perhaps killing thousands of microbes in the atmosphere. I am thus doing evil to something else. यहाँ पे एक सूक्ष्म और गंभीर प्रश्न आता है। स्वामी जी कहते हैं कि ये कैसे समझ जाए कि कौन सी क्रिया अच्छी है और कौन सी बुरी। बुराई और अच्छाई में कुछ ऐसा वाटर टाइट कंपार्टमेंट होता है क्या? एक बुरा है, एक अच्छा है, एक सफेद है, एक काला है, ऐसा नहीं होता है। जो भी क्रिया आप करते हैं उसका कुछ ना कुछ बुरा भी परिणाम होता है और अच्छा परिणाम भी होता है। दोनों बुरे फल और अच्छे फल भी देते हैं। जैसे स्वामी जी एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं, मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो कुछ लोगों को ये लगेगा ये अच्छा कर्म है क्योंकि मैं कुछ कर रहा हूँ, आपको उसका फायदा हो रहा है, आप कुछ सुन रहे, आपको भी कुछ ज्ञान मिल रहा है। लेकिन उसकी वजह से कई सारे छोटे छोटे जंतु है, उनको मैं मार भी रहा हूँ क्योंकि मेरे बोलने की प्रक्रिया से हो सकता है आसपास सूक्ष्म जगत में जो जीव है उनको धक्का लग रहा है, वो उनको बैठने को जगह नहीं मिल रहे, कई सारी चीजें हो सकती है। मैं वो मर रहे इसका पता भी मुझे नहीं है, लेकिन वो मर रहे। तो इस प्रकार से हर क्रिया का एक दुष्ट या जो उसका हम कह सकते हैं खल प्रवृत्ति का भी परिणाम हो सकता है, और सत प्रवृत्ति और खल प्रवृत्ति, अच्छाई और बुराई, सत्कर्म और दुष्कर्म, इसमें बीच में ज्यादा अंतर नहीं होता है। एक के लिए जो सत्कर्म है दूसरे के लिए वही दुष्कर्म हो सकता है। कुछ भी क्रिया करो आप, कोई उसको अलग अलग नजरिए से देख सकता है। When it is very near to us and affects those we know, we say that it is very good action. But if it affects them in a good manner, for instance, you may call my speaking to you very good because you do not see those microbes, but you are able to see me as a close person. The way in which my talk affects you is obvious to you, but how it affects microbes is not obvious. तो कभी-कभी ये भी होता है कि अच्छा और बुरे का फैसला लोग उनके नजदीक क्या है या उनको दृश्यमान क्या है उससे करते। तो मुझे दिख रहा है जो मेरे नजदीक है, जो मैं समझ सकता हूँ, उसको मैं अच्छा या बुरा ऐसे तौल सकता हूँ। लेकिन जो मुझसे दूर है, जो मुझसे मेरी समझ के बाहर है या जिसका परिणाम मुझे अभी नहीं दिख रहा है, उसके लिए मैं शायद गलत भी मेरा जजमेंट हो जाए। So he who in good action sees that there is something evil in it, and midst of evil action also sees that something good in it, he knows the secret of the world. तो कर्म की जो रहस्य यही है कि जिसे समझ में आ जाए कि हर बुरे में कोई अच्छा भी है, हर अच्छे में कोई बुरा कर्म भी है, सत्कृत्य में ही दुष्कृत्य भी हो सकता है, दुष्कृत्य भी सत्कृत्य हो सकता है। ये जब कोई समझ लेता है तभी वो कर्म का असली रहस्य जान लेता है। इस प्रकार से स्वामी जी हमें कहते हैं। तो इस उनकी श्रृंखला को हम आगे भी देखेंगे। उस प्रकार से वो हमें समझा रहे और बहुत ही सुंदरता से वो हमें इसका उद्बोधन कर रहे हैं। तो हमारे आने वाले सेशंस में हम निश्चित रूप से उसको और आगे समझने की चेष्टा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।